السلام علیکم۔ کہانی اب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت سا ناولٹ آپ سب کے لیے جس کا نام ہے وہ میرا ہے، رائٹر نمرہ احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کامنٹ اور لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں پھر کہانی کی طرف۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے وہ جھک کر ٹیرس سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کالونی میں خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سو اترنے لگی تھی۔ پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اونچے خوبصورت بنگلے قطار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک نامحسوس سا بوجھل پن تھا، غیر دلچسپ، پھیکا، بے رنگ سا منظر۔ اس کی نگاہیں مایوس سی پلٹ آئیں۔ بے حد بوریت بھری جگہ تھی۔ وہ اگر اسے پہلے علم ہوتا تو کبھی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے نہ آتی۔ پچھتاوے بھرے تعصب سے اس نے سر جھٹکا، پھر گردن موڑی۔ نگین شیڈ تلے کرسی پہ بیٹھی ناول میں گم تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو اتنی دیر سے؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک تو جگہ بور ترین تھی، اوپر سے نگین کی شخصیت۔ ہاں، صفحے سے نگاہیں اٹھائے بنا مبہم سا استفسار۔ میں نے پوچھا ہے کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چیخی۔ زرنیلا چائے بنانے گئی ہے، کمیل آیا ہوا ہے۔ شرمیلی مسکان لبوں پر سجائے نگین نے تجسس بھری بے چینی سے صفحہ پلٹا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ اماں نے کہا تھا چھٹیاں اچھی گزریں گی، خالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد چلی جاؤ، اور اس نے فوراً خوشی سے حامی بھر لی۔ خالہ لوگوں سے ملے بھی تو 5-6 برس ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو آنا جانا ہی ختم ہو گیا۔ اب اسی سال اسلام آباد واپس آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پہ بے حد خوش تھی۔ فون کا ہی صحیح، رابطہ تو تھا نا۔ اور یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے نگین کو کہہ ڈالا کہ میرا گمان ہے تم آج بھی 6 سال پہلے والی نگین ہوگی، اینک والی، ٹی وی، اخبار یا کتاب میں گھسی ہوئی۔ تمہارا گمان غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں بہت بدل گئی ہوں۔ نگین نے اپنے ازلی سادہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا، مگر جب ہانی نے یہاں آ کر اسے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے گمان واقعی سچ نکلتے ہیں۔ 6 سال بعد نگین ویسی ہی تھی۔ آنکھوں پہ موٹے عدسے والا بڑا سا چشمہ، تیل میں گندھی چوٹی، اور چہرے پہ چھایا ہونک پن۔ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت چلتی تھی، اپنا نہیں، ٹی وی چینلز کا ٹائم ٹیبل۔ مارننگ شو شروع ہونے سے 1 منٹ قبل وہ جاگتی، پھر چشمہ اٹھایا، بھاگ کر ٹی وی چلایا۔ پھر پہلا وقفہ آنے تک وہ بنا پلک جھپکے اسکرین پر نگاہیں گاڑے بیٹھی ہوتی۔ وقفے میں منہ دھونے اٹھتی، ٹی وی کی دل دادہ ڈراموں کے نشرے مقرر بھی دیکھا کرتی۔ جو وقت ڈراموں سے بچتا ان میں ناولز لے کر بیٹھ جاتی، کرسی پر ٹانگیں چڑھائے، تیل میں گندھی چوٹی کندھے پر ڈالے، وہی تاریخی چشمہ پہنے، کتاب میں گھس کر پڑھتی۔ نگین اسے بہت بور کر رہی تھی۔ کہاں یہ ہونک لڑکی، کہاں وہ لاہور کی پرنسس، خوبصورت، پر اعتماد، پرجوش، ٹپ ٹاپ سے رہنے والی، جس کے سلکی لمبے بال شانوں پر لہرا رہے ہوتے ہیں، فیشن اور سٹائل جس پر ختم تھے، جو ہر دم ہر چیز میں شغل تلاشتی تھی، اور جو اب ادھر آدم بیزار بور قسم کے اسلام آبادیوں میں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ لاہور میں ہی رہتی، جہاں ہر دم رونق اور شغل ہوتا تھا۔ ہائے اللہ، کیا ہوا؟ نگین کی کراہ پہ وہ گھبرا کر پلٹی۔ شاہ نے زرنیلا کے اوپر چائے گرا دی۔ وہ پریشانی سے سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھتی جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ نگین۔ پیر پٹک کر دوبارہ ریلنگ کے پاس چلی آئی۔ کالونی ویسی ویران پڑی تھی۔ اس کی بوریت اشتہا کو پہنچ چکی تھی، اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی جب اس نے سامنے والوں کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیکھی۔ ہانی نے گردن اونچی کر کے دیکھا، کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پہ لگائے، دوسرے سے لاک میں چابی گھماتا۔ وہ جو بھی تھا بہت ہینڈسم تھا۔ نیلی جینز پہ سیاہ شرٹ، لمبا قد اور صاف رنگت۔ وہ اب گیٹ بند کرنے واپس پیچھے کو جا رہا تھا۔ فون پر بدستور کان سے لگا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے ایک گورا نکلا تھا۔ بلیک واٹر۔ ہانی کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال ابھرا۔ گیٹ بند کر کے وہ اندر جا رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ اوف، کتنا ہینڈسم تھا، لیکن ملک دشمن۔ نگین، نگین، وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ واپس جانے کے سارے ارادے بھول گئے تھے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ کسے؟ وہ جو C5 میں رہتا ہے۔ ہاں دیکھا ہے۔ نگین کا چہرہ ہنوز کتاب پہ جھکا تھا۔ اچھا، کون ہے وہ؟ خوشی بھرے تجسس سے اس کے قریب ہوئی۔ کیسا ہے؟ نگین نے لمحہ بھر کو ناول سے سر اٹھایا، ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی۔ بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد، مضبوط جسامت، اور یہ لمبی سی دم۔ وہ آنکھیں موندی جو کسی حسین تصور میں کھوئی تھی، جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کی دم بھی ہے؟ ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی۔ کتا؟ کون سا کتا؟ وہ جو سامنے والوں کا ہے۔
अबे मैं कुत्ते की नहीं, इसके मालिक की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा वो, नगीन जवाब देते हुए फिर से पढ़ने लगी। वो कोई नया किराएदार है, अभी हफ्ता भर पहले शिफ्ट हुआ है। बस वो कुत्ता इसी का है, सफ़ेद जर्मन शेफर्ड। सोना इंग्लैंड से लाया है, कुत्ता भी साथ ही लिया है। अच्छा चलो फिर इसके घर चलते हैं। कुछ सोच कर उठी। नगीन ने पहली दफ़ा नावल से चेहरा उठाकर हैरानी से इसे देखा। मगर क्यों? ये तुम बताओ, तुम्हारे नावल की हीरोइन हीरो से कैसे मिली थी? वो जरनीला, वो कुमेल के घर बिरयानी देने गई थी तो। बस हम भी इसके घर बिरयानी देकर आते हैं, चलो। मगर हानि, जरनीला गई तो आगे से। भाड़ में गई तुम्हारी जरनीला। इसने गुस्से से नावल खींचा और बिना देखे पीछे फेंक दिया। सीढ़ियों से छोटू कपड़ों की गठरियाँ उठाए आ रहा था। नावल इसके सर पे लगा। वो एक चीख के साथ गठरियों समेत पीछे गिरा। तुम्हारा नावल तो चीखता भी है। हानि हैरत से मुड़ी। सामने कोई नहीं था, मगर नगीन देख चुकी थी मेरा नावल। वो सीढ़ियों की जानिब दौड़ी। रुको तो, वो पीछे लपकी। सीढ़ियों पे तीनों गठरियाँ ऊपर नीचे पड़ी थी। नगीन उनके दरमियान हाथ मार रही थी। मर गया या बच गया? बच गया। इसने खुशी खुशी कहीं से किताब खींच निकाली। ओह, मार देता है बाजी। छोटू कहीं अंदर कराह रहा था। 12 साल का काम वाला लड़का। इसकी ड्रामा बाजियों से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। सो नगीन ने झुक कर इसकी नब्ज़ चेक की। जिंदा है ये। और हानि से हाथ से खींच कर नीचे ले आई। लाउंज के इस तरफ किचन था। खुले दरवाजे से खाला चूल्हे के पास काम करती दिखाई दे रही थी। खाला, वो बहुत खुशगवार मोड़ महीने पुकारती हुई अंदर आई। बड़ी खुशबू आ रही है, क्या पका रही हैं? करेले। करेले? इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। हलक तक कड़वा हो गया। फिर फ्रिज पर नज़र पड़ी तो ज़रा उम्मीद बंधी। खाला, कल का कौन सा सालन रखा होगा? टिंडे, बैंगन। वो मसरूफ़ सी हांडी में चम्मच चला रही थी। अब भला टिंडों में बैंगन डालकर कौन खाता था सिवाय खाला के? टिंडे रखे थे तो आज करेले ना बनाती, हम वही खा लेते। बुड़बुड़ाती फ्रिज का जायज़ा लेने लगी। खाला के कान बहुत तेज़ थे। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वो कहा करते थे, जिस घर में रोज़ चूल्हा जले वही घर बसता है। सुई गैस के महकमे में तो नहीं थे आपके ससुर? क्या कहा? कुछ नहीं अम्मी, आप ये बताएं, कोई स्वीट डिश रखी है? नगीन की पहली समझदारी की बात पे हानि ने हैरत से इसे देखा तो वो ज़रा सी शर्मा गई। वो जरनीला बिरयानी के साथ खीर भी लेकर गई थी ना, सरगोशी में बताया। इधर खाला शुरू हो चुकी थी। स्वीट डिश कहाँ से आती? सुबह से चीनी ख़त्म है। अल्लाह बख्शे मेरे मरहूम ससुर को। वो कहा करते थे, जिस घर में चीनी ना हो वो घर। और वो नगीन को हाथ से पकड़कर बाहर खींच लाई। चीनी ख़त्म है ना, बस हम इसे चीनी ही मांगने जाते हैं। हाय अल्लाह, हम कोई मांगने वाली हैं? ओहो, चीनी मांगने से क्या होता है? इसे ज़बरदस्ती लाउंज तक अपने साथ लाई। फिर पलट कर देखा। वहाँ एक कोने में सोफ़े के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर तरफ किताबों के ढेर लगे थे। एक चौड़ी सी इंसाइक्लोपीडिया टाइप की किताब खुली पड़ी थी। 2 हाथों ने इसे थाम रखा था। थामने वाले का चेहरा किताब के पीछे छुपा था। सनी, अगर खाला हमारा पूछे तो कहना हानि और नगीन कुत्ते वाले से, सॉरी, सामने वालों से चीनी मांगने गई हैं। इसने खुली किताब को आवाज़ लगाई। किताब ज़रा नीचे हुई और पीछे छुपा ऊपर निकला। 13 साला सनी, जिसकी हैरी पॉटर वाली गोल ऐनक नाक पे फिसल रही थी। चीनी? इसने उंगली से नाक पे गिरती ऐनक पीछे की। क्या आप जानती हैं कि चीनी गन्ने के रस से बनती है और इसकी कमी से दिमाग के सेल मरने लगते हैं? ओहो, वो तो नक्कर वापस पलटी। एक से एक नमूना पड़ा था खाला के घर। लाहौर से इधर आ रही थी तो सहेलियां कह रही थी कि खाला के किसी हैंडसम बेटे से मंगनी करवा कर आना। अब इनको क्या बताऊंगी कि खाला के बच्चे 2 ही अच्छे, और इतने अच्छे कि अपने किसी काम के नहीं रहे। खालू भी खाला के ससुर की तरह मरहूम हो चुके थे और पीछे अजब तकून छोड़ गए थे। इसने कुत्ते वाले की बेल बजाई। फिर एक हाथ से खुले बाल संवारे। दूसरे हाथ ने अभी तक नगीन का हाथ दबोचा हुआ था, जो बेहद डरी, सहमी, घबराई घबराई से इधर उधर देख रही थी। तुम क्यों परेशान हो? हाँ नहीं, अगर इसने हमें डांट दिया तो हम फ़ौरन से गिरकर फौत हो जाएंगे। ठीक है, डूब मरो नगीन। बंदा ही है, कुत्ता तो नहीं कि खा जाएगा। और इसी पल कुत्ते की ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आई। वो डर कर पीछे हटी। रोमियो, बी क्वाइट। कोई बरामदे के दरवाजे से निकलते हुए कुत्ते को नरमी से डांट रहा था। भौंकने की आवाज़ फ़ौरन रुक गई। वाह, कुत्ता तो बड़ा रोमांटिक रखा है जनाब ने। रोमियो, इसने बेसाख्ता सराहा। कदमों की आवाज़ करीब आई और गेट का हुक हटा। फिर दरवाज़ा अंदर को खुला। फरमाइए। उखड़े उखड़े तेवर लिए सामने हुआ। नगीन इसकी कोहनी पकड़े बिल्कुल इसके पीछे जा छुपी। अस्सलाम वालेकुम, हम सामने वाले घर में रहते हैं। फिर? वो दरअसल आप शायद नए आए हैं। आप? हानि ने रुक कर सवालिया अबरू उठाई। मैं फ़रहाद हूँ। और मैं शीरीं।
बेसाख्ता लबों से फिसला। जी, वो शीरा बनाना है, चीनी चाहिए थी, हड़बड़ाकर संभली। शीरा चीनी से बनता है या गुड़ से? नगीन ने पीछे से सरगोशी की। इसने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए ज़ोर से अपना जूता नगीन के पाँव पे रखा। जवाबन वो दबी दबी सी सिसकी, सॉरी मेरे पास चीनी नहीं है। खुश्क लहजे में कहता गेट बंद करने लगा। मगर क्यों? लगते तो आप खासे वेलाफ है। मोहतरमा, मैं मीठा नहीं खाता। तो चाय में क्या डालते हैं? कैंड्रल। वो दांत पीस कर जब्त से बोला। सामने कोने पे स्टोर है, वहाँ से चीनी मिल जाएगी, और साथ में इखलाकियात की कोई किताब भी। और खट से दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर ज़ोर से कुंडी चढ़ाई। कुत्ता फिर से भौंकने लगा। वाह, खुद फरहाद हैं, कुत्ता रोमियो है। रोमांस ज़रा छू कर नहीं गुजरा, जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। वो खिफ़्फ़त छुपाने को ज़ोर ज़ोर से बुड़बुड़ाती वापस पलटी। मैं तुम्हें बताने ही लगी थी हानि, तुमने नहीं सुना क्या? नगीन की शर्मिंदा आवाज़ पे वो चौंकी। यही कि जब जरनीला बिरयानी लेकर गई थी तो कुमैल ने भी यही कहा था। नगीन ने बेबसी से सर झुका दिया। वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। इसने अलमारी का पट खोला। सामने एक इस्त्री शुदा नया रेडीमेड जोड़ा लटका हुआ था, जदीद तराश खराश का खूबसूरत जोड़ा। हानि ने हैरत से पलटकर नगीन को देखा, जो चेहरे के सामने किताब लिए आरामदेह कुर्सी पे झूल रही थी। इस वक्त इसने सस्ती सी लॉन का पेंडू सा जोड़ा जेबतन कर रखा था। ये जोड़ा किसका है? मेरा। बिना सर उठाए जवाब मिला। कौन लाया था? इसे यकीन न था नगीन की पसंद इतनी ज़बरदस्त हो सकती है। अम्मी। तो पहनती क्यों नहीं हो? खाला रशीदा ने बताया था कि इस पे साया है। क्या? इसने घबरा कर अलमारी बंद की और दोनों हाथ झाड़े, फिर एकदम ठिठक कर पलटी। ये खाला रशीदा कौन है? पता नहीं। किताब पर सर झुकाए नगीन ने शाने उचकाए। तो तुम्हें कहाँ मिली? ख्वाब में। ये मैंने देखा, एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई हैं ख्वाब में, और उन्होंने बताया कि उनका नाम खाला रशीदा है, और ये कि इन सारे कपड़ों पर साया है, सो इनको मैं ना पहना करूं, इसलिए मैं नहीं पहनती। बिल्कुल बुद्धू हो तुम। जारहाना अंदाज में अलमारी की तरफ बढ़ी, फिर रुक गई। क्या पता वाकई इन पे साया हो, वरना खाला रशीदा को क्या शौक था कि उसके ख्वाब में आती। आहिस्ता से अलमारी से परे खिसक आई। सुनो नगीन। चंद लम्हे बाद इसने इसे पुकारा। तुम्हारे पड़ोसी के पास चलते हैं। फिर? अब क्या बहाना करेंगे? तुम्हारी इस रंगीला ने अगला बहाना क्या किया था? जरनीला। नगीन ने बुरा मान कर इसे देखा। जो भी है, अभी तो मुझे बस फरहाद का नाम याद है। वो चित बेड पे गिर गई। बड़ा ही शानदार बंदा है, इसके साथ ये छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरेंगी। सुनो। वो पुरजोश से उठकर बैठी। तुम्हें इसके साथ सेट ना करा दूं? तौबा करो हानि, कैसी बातें करते हो? वो अकेला बंदा पता नहीं कौन है, और तुम? सुर्ख पड़ते चेहरे के आगे इसने किताब कर ली। अकेला? हानि ने जैसे कुछ समझकर सर हिलाया। वो अकेला क्यों रहता है? लपक कर खिड़की की तरफ आई, पर्दा हटाया तो सामने इसका टेरेस दिखाई दे रहा था। इसको अपने शकोक सही होते नजर आए थे। एक अकेले बंदे को इतना बड़ा घर किराए पर लेने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ एक पोर्शन क्यों नहीं लिया इसने? आंखें सुकेड़े इसके टेरेस को देख रही थी। मुझे क्यों गुमान हो रहा है नगीन के ज़रूर कोई बात है, वरना इतना बड़ा घर लेकर क्यों रहता? इस दिन उसने हमें चीनी भी नहीं दी, कहीं हम इसके घर के अंदर ना आ जाएं। कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। तुम सुन रही हो या नहीं? हाँ हाँ, नगीन ने घबरा कर किताब से सर उठाया। तुम कह रही हो कि इसकी चीनी में गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में। अच्छा चलो, आज सनी के पास होने की खुशी में जो खाला ने खीर बनाई है ना, वो इसे देकर आते हैं। मगर अम्मा ने तो इसलिए बनाई है कि वो दूध बचा पड़ा था, और इसे क्या पता कि किसने बनाई है। बस चलो। तेज़ी से बालों में ब्रश कर रही थी। सिंगार में इसके आईने में इसका अक्स नुमाया था। खिलते हुए गुलाबी रंग की चूड़ीदार आस्तीनों वाला लंबा फ्रॉक और पाजामा पहने, सिल्की बाल, आंखों में काजल लगाए बहुत अच्छी लग रही थी। अपनी तैयारी से मुतमईन होकर पलटी। नगीन उधर नहीं थी। ये किधर गई? सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो लाउंज में वो टीवी के सामने बैठी थी। हानि ने घड़ी देखी, 8 बज गए थे। अब नगीन से कुछ कहना बेकार था। कोने में किताबों के ढेर में सनी का सर दिखाई दे रहा था। इसे एकदम एक ख्याल आया। सनी, तुम कितने अच्छे हो। खुश दिली से कहती इसके साथ आकर बैठ गई। सनी ने सर ऊंचा किया, मशकूक नज़रों से इसे देखते हुए उंगली से नाक पे फिसलती ऐनक पीछे की। सनी, मुझे लग रहा है आज बारिश होगी, है ना? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। इसने बगौर हानि की बेतकल्लुफ़ मुस्कुराहट को देखा। अमूमन वो हर वक्त जली भुनी रहती थी। मुझे बारिशें बहुत पसंद है। इसने मज़ीद बेतकल्लुफ़ी बढ़ाना चाहिए। क्या आप जानती हैं, हर सेकंड पूरे कुर्राए अर्ज़ पे जितनी मिकदार में बारिश होती है, इतना ही पानी हर सेकंड में ज़मीन पर से बुखारात बनकर उठ जाता है। वो पैर पटक कर खड़ी हुई। सारा दोस्तानापन हवा हो गया था।
सोचा था इसे फरहाद के घर अपने साथ ले जाएगी, मगर इस घर में कोई भी नॉर्मल नहीं था। खाला पूछें तो बता देना, मैं ज़रा पड़ोस में जा रही हूँ। सनी ने शाने उचकाए और फिर से किताब चेहरे के सामने कर ली। वो किचन में आई, फ्रिज से खीर निकाल ली, फिर ट्रे में छोटे डोंगे में डालकर सेट की, ऊपर प्लेट रखी, जालीदार कपड़े से ढका। एक नज़र खुद को स्लेब के चमकते मार्बल में देखकर ओके किया और बाहर चली आई। बिजली गई हुई थी और गेट खुला था। इसके दोनों हाथों में ट्रे थी। सो गेट कैसे बजाती, या फिर मुतजस्सिस फितरत गालिब आ गई, बिना दस्तक दिए अंदर घुस गई। कुत्ता टांगे पसारे सो रहा था। इसने शुक्र किया बरामदे में अंदर खुलने वाली खिड़की का दरवाज़ा नीम हुआ था। वो आहिस्ता से दबे पांव बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब अंदर से आती आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। जी जी सर, आप फिक्र ना करें। और फिर एक जानदार सा कहा, वो फरहाद ही था। हानि ज़रा सी दीवार की ओट में हो गई। मुझ पे भरोसा रखें, मैंने कहा ना, मैं ब्लास्ट चांद रात को ही करूँगा। अच्छा है ईद वाले दिन लोगों के घर सफ़े मातम बिछी हो तो कितना मज़ा आए। ट्रे इसके हाथों में लरस गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जी, जब तक आपका काम ना हो जाए मैं इधर पाकिस्तान में ही रहूँगा। जैसे ही काम होगा मैं वापस आ जाऊँगा। आवाज़ खामोश हो गई। शायद इसने फ़ोन बंद कर दिया था। वो उल्टे कदमों बाहर को भागी। गेट खुला ही रह गया, बंद करने का होश ही नहीं रहा था। बस एक ख्याल हवासों पे छा गया, दहशतगर्द। यकीन हो गया था वो शख्स दहशतगर्द था, तभी वो कहे कि अकेला क्यों रह रहा है। ना इसने इसे ऑफिस वगैरह जाते देखा, ना किसी को इसके पास आते देखा। आखिर बात वही निकली, इसे बम ब्लास्ट करना था। क्यों, आखिर क्यों? इसके गुमान सच निकलते थे। इसने ट्रे वहीं पटकी और हवास बाख्ता से लाउंज में आई। नगीन इसी तरह हथेलियों पे चेहरा गिराए टीवी स्क्रीन को देख रही थी। नगीन, नगीन, वो दहशतगर्द है, वो गैर मुल्की एजेंट है। वो पाकिस्तान में धमाका करने आया, इसने चांद रात पे ब्लास्ट करना है। नगीन ने हैरत से गर्दन इसकी जानिब मोड़ी। कौन? वही C5 वाला, वो कुत्ता। इसका मुंह खुल गया। कुत्ता नहीं, इसका मालिक। क्या कह रही हो हानि? नगीन की आंखें फैल गईं। सच कह रही हूँ। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं नहीं, मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से खुद सुना है। गैर मुल्की दहशतगर्द है। फ़ोन पे अपने बॉस से प्लान डिस्कस कर रहा था, मैंने सुन लिया। बस अब जल्दी से पुलिस को फ़ोन मिलाओ। इसने तिपाही पर धरा फ़ोन सेट उठाकर गोद में रखा। मगर हानि, अगर पुलिस ने तुमसे सबूत मांगा तो? वो जो ज़ोरों शोर से नंबर डायल करने लगी थी ढीली पड़ गई। वाकई सबूत तो इसके पास नहीं था, लेकिन हमें इत्तला तो करना चाहिए। मगर किस बुनियाद पे? अगर वो वाकई यही है तो इसके सोर्सेज पुलिस में भी होंगे और पुलिस के पास हमारा नंबर आ जाएगा। फिर क्या करें? सबूत कैसे इकट्ठे करें? इसने फ़ोन परे कर दिया। ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा सोचो कि अब क्या करना है, क्या करें? दोनों ने चंद लम्हे खामोशी से एक दूसरे को देखा, फिर अपने सर हाथों में गिरा दिए। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए, फिर एक झटके से दोनों ने सर उठाया। सनी! दोनों एक साथ चीखें। किताबों के ढेर में बैठे सनी ने फ़ौरन किताब चेहरे की और आगे कर दी। सनी आगे पीछे जस्त लगा कर दोनों इसके इतराफ़ में आ बैठी। कारपेट पे सोफ़े के किनारे से टेक लगाए बैठा था। उनके पुकारने पर उसने किताब हटाई। जी, तुम कितने अच्छे हो सनी। काम बताएं। अगर तुम्हारे पास किसी मुजरिम को गिरफ्तार करवाने के लिए सबूत ना हो तो तुम क्या करोगे? मैं अपने काम से काम रखूँगा। इसने फिर से किताब चेहरे के सामने कर ली। सनी, अच्छे भाई नहीं हो। देखो, अगर वो मुजरिम किसी की जान के दर पे हो तो कभी तो तुम कुछ नहीं करोगे। फिर भी सनी ने किताब बंद करके मेज़ पे रखी, फिर उंगली ठोड़ी पे रखे ऊपर देखते हुए सोचने लगा। हाँ, तब मैं इसे गिरफ्तार करवाऊँगा। मगर कैसे? याद रखो, तुम्हारे पास इसके खिलाफ सबूत नहीं है। मैं इसकी जासूसी करके सबूत इकट्ठे करूँगा। हानि और नगीन ने एक लम्हे को एक दूसरे को देखा और फिर सनी को। और ये जासूसी क्या होती है? जासूसी? इसने नाक पे फिसलती ऐनक पीछे की। क्या आप जानती हैं कि जासूसी असाब का खेल है? ये सिर्फ मजबूत असाब से ही खेला जा सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए तारिक इस्माइल सागर की किताब मुलाहिज़ा फरमाएं। कोई किताब पढ़कर जासूस नहीं बन सकता सनी, हमें एक टीचर चाहिए। सनी ने मुस्कुराकर फिर ऐनक पीछे की। मुझसे अच्छा टीचर आपको नहीं मिल सकता। अब वो ढेर में हाथ डाले कोई किताब निकाल रहा था। जासूसी का पहला स्टेप, टारगेट की रूटीन का जायज़ा। सनी काउच पे बैठा, पाँव मेज़ पर रखे किताब से पढ़ रहा था और यही पढ़ कर उन्हें बता रहा था। वो दोनों खिड़की के सामने जुड़ी बैठी थी। सनी ने कहीं से एक दूरबीन निकालकर उनको दे दी थी और अब इसे आंखों से लगाए हानि टारगेट की हर हरकत बता रही थी, जो कि साथ बैठी नगीन तेज़ी से नोटबुक पे लिखे जा रही थी। लिखो।
सुबह 7 बजे वो कुत्ते को लेकर वॉक पर निकला, 8 बजे वापस आया। फिर इसने लॉन में बैठकर चाय पी। इसका कुत्ता चाय भी पीता है? नगीन ने बेयकीनी से सर उठाया। जवाबन हानि ने ज़ोर से इसे कोहनी मारी। लिखो, टारगेट ने चाय पी, अब वो अखबार पढ़ रहा है। नगीन तेज़ी से लिख रही थी। अब वो किसी को फ़ोन मिला रहा है। एक तो इस दूरबीन से आवाज़ क्यों नहीं आती? ये भी लिखूं? नगीन ने रुक कर पूछा। हानि ने इसे मारने के लिए कुशन उठाया और वो दोनों हाथ सर पे रखे नीचे हुई। पहले 3 दिनों में उन्होंने इसकी रूटीन अच्छी तरह समझ ली। वो सुबह वॉक के लिए घर से निकलता, फिर रात को 7-8 बजे के करीब फिर रमज़ान शुरू हो गए। इसकी रूटीन बरकरार रही। अब भी वो रात 8 बजे खूब तैयार होकर गाड़ी पे निकल जाता, फिर रात 11 के करीब टेरेस पे मोबाइल कान से लगाए हंस हंस कर बातें करता दिखाई देता। 11:30 तक वो सोने चला जाता और दूरबीन रख देती। जासूसी का दूसरा स्टेप, टारगेट के जानने वालों से इसके मुतालिक मालूमात इकट्ठी करना। सनी के पढ़ाए गए असबाक इनके जहनों में मुसलसल घूम रहे थे। वो जमाइयाँ रोकती बेजार सी कॉलोनी के सिरे पे बेंच पे बैठी थी। नगीन कलम और नोटबुक थामे मुस्तैदी से खड़ी थी। कब आएगा आखिर इसका अखबार वाला? हानि ने कोफ्त से कलाई पे बंधी घड़ी देखी। इसे घड़ी बांधने की कतन आदत नहीं थी, मगर जेम्स बॉन्ड को फिल्मों में और पॉटर होम्स को किताबों में घड़ी पहने हमेशा देखा था। फ़िलहाल वो ख़ुद को इनसे कम नहीं समझ रही थी। अखबार वाला आएगा तो हम क्या करेंगे हानि? बुद्धू, याद नहीं है सनी ने क्या कहा था? पहले इसकी तारीफ़ करके इसे मुतासिर करेंगे, फिर इससे टारगेट के मुतालिक पूछेंगे। क्या पूछेंगे? देखो वो आ रहा है। इसने जल्दी से नगीन का हाथ दबाया और उठ खड़ी हुई। अखबार वाला साइकिल दौड़ाता सामने से आ रहा था। फरहाद के घर के बाहर इसने साइकिल रोकी, रोल किया हुआ अखबार अंदर उछाला, फिर इसे मगन अंदाज में साइकिल आगे बढ़ा दी। वो दोनों चलकर इसके सामने आ गईं। अखबार वाले ने साइकिल आहिस्ता कर दी। बात सुनना भाई। जी। इसने साइकिल उनके करीब रोकी। अस्सलाम वालेकुम। हानि ने तमीज़ से सलाम किया। तभी नगीन ने कोहनी मारी। इसने पलटकर नगीन को देखा। क्या है? तारीफ़ करो ना इसकी, पुरजोश सी सरगोशी की। अब इस जकोटा जिनकी मैं क्या तारीफ़ करूं? इसने नगीन को घूरा, फिर चेहरा अखबार वाले की जानी मोड़ा। भाई आपके पास डेली टाइम्स होगा? नगीन ने हैरत से इसे देखा। एक आखिरी था, वो अभी C5 में फेंक दिया। आपके पास और नहीं होगा? हानि, नगीन ने परेशानी से उलझ कर इसका बाजू थामना चाहा। नहीं और नहीं है। नफ़ी में सर हिलाते अखबार वाले ने अखबारों के बंडल में हाथ मारा था। ओहो, मुझे तो बहुत ज़रूरी चाहिए था। मेरा BA का रिज़ल्ट आउट हुआ है कल। आप मुझे C5 वाले से अखबार सिर्फ 2 मिनट के लिए ला देंगे ना? नगीन हवन्नों की तरह इसे देख रही थी। मगर बीबी, प्लीज़ भाई ला दें। देखें, मैं इतनी देर से आपको यही कहने खड़ी थी। अब नगीन से ज़ब्त ना हो सका। नहीं नहीं हानि, तुम ये कहने तो नहीं आई थी, तुम भूल गई हो। तुम्हारा BA तो पिछले साल ही क्लियर हो गया था ना। हम तो इसलिए यहाँ खड़े थे क्योंकि हमने अखबार वाले से इस बंदे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना थी। इसने बौखला कर नगीन के मुंह पे हाथ रखा। अखबार वाला मशकूक निगाहों से इन्हें घूर रहा था। किसकी जासूसी कर रही हो आप बीबी? जासूसी? नगीन की आंखें हैरत से उबल पड़ी। इसे कैसे पता चला? कुछ नहीं, तुम जाओ। और वो कहने के साथ ही नगीन का हाथ खींचती वापस ले आई। जासूसी का तीसरा स्टेप, टारगेट के ना जानने वालों से इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना। सनी कमरे में टहलता, किताब पे निगाहें जमाए, हाथ हिला हिला कर कह रहा था। अब ये ना जानने वाले कौन होते हैं? C4 के गेट के सामने खड़े हुए हानि ने झल्ला कर पूछा था। जवाबन नगीन ने फ़ौरन नोटबुक के सफ़े पीछे किए। हाँ सुनो, सनी ने कहा था, ये वो लोग होते हैं जिनको आप जानते हो और जो टारगेट को भी जानते हो, मगर टारगेट इनको ना जानता हो। चलो देखते हैं। हानि ने गहरी सांस लिए हुए बेल पे हाथ रखा। ये C4 था, फरहाद के हमसायों का घर। चंद ही लम्हे बाद गेट खुला। एक खातून ने सर बाहर निकाला, सर से पैर तक इनको देखा, नाक चढ़ाई। क्या है? अंदाज रूखा था। हम सामने वाले घर से आए हैं, कुछ काम था आपसे। हानि ने मुस्कुराकर खुशदिली से तारुफ करवाया। बोलो। वो आंटी, बात यह है कि वैसे अदब में आंटी कह रही हूँ, वरना कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप तो माशाल्लाह इतनी यंग हैं। वाकई हानि, आंटी तो ना कहो, छोटी नानी जितनी तो होंगी, नगीन ने आहिस्ता से कहा था, मगर आंटी के तासुरात बिगड़े। जी बिल्कुल, हमारी छोटी नानी 20 ईयर्स की हैं। नाना अब्बा की दूसरी वाइफ है ना, तो इसलिए सब उन्हें नानी कहते हैं, वरना माशाल्लाह आपकी तरह यंग और स्मार्ट हैं। इसने नगीन को घूर कर मुस्कुराते हुए बात संभाल ली। आंटी के तासुरात ज़रा नरम पड़े। ज़रा तफाखुर से उन्होंने शाने उचकाए। जाहिर है, असली उम्र ज़ाहिर हो ही जाती है। खैर बताओ, क्या काम था?
वो आंटी, बल्कि बाजी कहना मुनासिब होगा अब कि वो सनी के नसीहतों पे पूरी तरह अमल कर रही थी। बात यह है कि हर तरफ लॉन की सेल लगी हुई है, रमज़ान भी शुरू हो चुका। अब मेरी कज़न तो ज़रा फुअड़ है और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं, मगर इतने दिन से मैं आपको देख रही हूँ, आपके कपड़ों के कलर्स और प्रिंट्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि मैं मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकी। नगीन का मुँह आधा खुल गया। अब आप खुद ही देख लें कि मेरा और मेरी कज़न का जोड़ा कितना आम और फीका सा है। दूसरी तरफ आपका ये जोड़ा 3000 से कम का तो नहीं लग रहा। नगीन के माथे पे तेवरियां पड़ रही थी, मगर वो इसे नहीं देख रही थी। तो बाजी, मैं आपसे यही कहने आई थी, अगर ड्रेस सिलेक्शन में आप मेरी मदद करें और मेरे साथ शॉपिंग पे चलें तो। कौन सी शॉपिंग? कहाँ की शॉपिंग? नगीन कमर पे हाथ रखे चिल्लाई थी। तुमने तो मुझे कहा था कि C4 की बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम की झूठी तारीफ़ें करेंगे, तो खुश होकर वो साथ वाले के बारे में हमें सारी मालूमात दे देगी। तुमने अकेले अकेले शॉपिंग भी प्लान कर ली और मुझे बताया तक नहीं। नगीन, नगीन, इसने बौखलाकर आंटी को देखा, जो अब कहर बरसाती नज़रों से इसे देख रही थी। मैंने शॉपिंग का तुम्हें नहीं बताया था। मगर बात संभालने से कबल आंटी ने खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम वाकई मेरे बगैर शॉपिंग पे चली जाती क्योंकि मैं फुअड़ हूँ? वो रूहान सी हो रही थी। ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या हो। आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी। जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी और नगीन डर कर घर की तरफ भागी। जासूसी का चौथा स्टेप, टारगेट के बारे में डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। अफ्तारी के बाद वो तीनों नगीन के कमरे में मौजूद थे। सनी हाथ में चिप्स का खुला पैकेट पकड़े चिप्स निकाल निकाल कर खा रहा था। गोद में बड़ी सी किताब रखी हुई थी। नगीन साथ बैठी अपने दुपट्टे के पल्लू से चश्मा साफ कर रही थी, जबकि वो दूरबीन लगाए खिड़की से बाहर देख रही थी। मायूसी से पर इसने दूरबीन रखी। इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी करें? मेरे बाप दादा का कभी नादरा से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तौबा, इनका क्यों किसी नादरा से ताल्लुक़ होता? नगीन बुरा मान गई। तुम तो चुप ही रहो। सुबह से इस पर जली भुनी बैठी थी। हर दफ़ा नगीन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करती थी। मैं तो बताने लगी थी कि उज़्मा ने मक्कार डाकू के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, मगर ठीक है, नहीं बोलती। कौन उज़्मा? और क्या किया इसने? वो अलर्ट हुई। धुआं ड्रामे वाली उज़्मा। जब अजहर ने इसे मस्कार की बीवी को फ़ोन करने को कहा था, फिर उन्होंने बासानी मस्कार को ट्रेस कर लिया था। अरे हाँ, याद आया, फ़ोन लगाओ। मगर नंबर आ जाएगा। अरे मेरी सिम से करो, इससे कुछ नहीं होगा। इसने झट अपना मोबाइल तकिए से उठाया और नंबर डायल किया। रिकॉर्ड भी करो ना। करती हूँ। इसने रिकॉर्डिंग ऑन करके फ़ोन कान से लगाया। घंटी जा रही थी। नगीन और सनी आगे होकर इसको देख रहे थे। हेलो। छठी घंटी पे फ़ोन उठा लिया गया। मैं सर्फ बनाने वाली कंपनी से बात कर रही हूँ। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में आवाम का फ़ीडबैक जानना चाह रहे थे। आप बताइए, आपने हमारे सर्फ को कैसा पाया? मैं धोबी नहीं हूँ, कपड़े लॉन्ड्री से धुलवाता हूँ, वो बेजारी से बोल रहा था। दूसरी तरफ से खट से फ़ोन रख दिया गया। पता नहीं कि शीरी का फरहाद है ये। फ़ोन को घूर कर रहेगी। खैर, इसकी आवाज़ हमारे पास आ गई है। अब आगे क्या करना है? क्या करना है? सनी के पैकेट से चिप्स निकालती नगीन ने गायब दिमागी से दोहराया। भाई, उज़्मा ने आगे क्या किया था? वो अजहर ने रिकॉर्डिंग SHO को सुनवाई थी और SHO मस्कार की बीवी की आवाज़ पहचान गया था। मगर हमारी कहानी में ना अजहर है ना SHO। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। काश तुम कभी सोचने भी लगो नगीन। इसने बेजारी से फ़ोन वापस फेंका। इतना वक्त बर्बाद कर दिया और हासिल कुछ भी नहीं। वैसे इसके मालिक मकान के पास इसके डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। चंद लम्हों बाद वो सोच कर बोली, लेकिन मालिक मकान का नंबर तो हमारे पास नहीं है। मगर इस शीरी के मियाँ के पास तो होगा ना। मेरे पास एक आइडिया है। छोटू, छोटू। वो ऊंचा ऊंचा छोटू को पुकारती अपना मोबाइल तलाश करने लगी। दूरबीन आंखों से लगाए वो मोबाइल कान पे रखे बैठी थी। नगीन ने अपना कान इसके कान से लगे मोबाइल से जोड़ रखा था। अब छोटू इसके सामने खड़ा है। वो दूरबीन से देखती मध्यम आवाज़ में कह रही थी। सामने वाले लॉन में वो कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। छोटू इसके सामने थर थर कांपता खड़ा था। क्या बात है? कौन हो तुम? हानि के कान से लगे मोबाइल से फरहाद की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। इसकी कॉल नगीन के मोबाइल से मिली हुई थी और जो छोटू की जेब में छुपा हुआ था। वो जी, मुझे मेरे साहब ने भेजा है। हम आपसे पहले इस घर में रहते थे। हमारा कुछ सामान इधर रह गया था, जिसके लिए हमें मालिक मकान से रब्ता करना है। साहब से इसका नंबर खो गया, अगर आपके पास है तो दे दें। छोटू ने रट्टू तोते की तरह हानि का याद कराया बयान दोहरा दिया। हानि ने फातहाना मुस्कुराहट से नगीन को देखा, फिर सामने नजर आते मंजर को। अच्छा। फरहाद ने आंखें सुकेड़ कर छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारा नाम क्या है? नाम?
छोटू के रहे से आसान जाने लगे। नाम का बताना तो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। क्यों, तुम्हें अपना नाम नहीं आता? वो जी बाजी ने कहा था कि कुत्ते वाला जो भी फजूल सवाल पूछे जवाब नहीं देना। हानी ने बेख्तियार सर पे हाथ मारा। फरहाद के लबों को एक जानदार मुस्कुराहट छू गई। तुम्हारी बाजी ने और क्या क्या कहा था? वो जी, छोटू ज़रा सा शर्मा गया। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये काम कर दूं तो जिस कुड़ी से चाहूँ वो इससे मेरा ब्याह करा देंगी। तुम्हारी बाजी ने कोई मैरिज ब्यूरो तो नहीं खोला हुआ? ना जी, वो क्यों खोलेंगी, वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, लाहौर से आई हैं। चुगत जलील, अब नाम ही ना बता दे। वो दूरबीन आंखों से लगाए गुस्से में खोल रही थी। तो जाकर अपनी पढ़ी लिखी बाजी से कहो कि कुत्ते वाला पूछ रहा है। मेरे शिफ्ट होने से हफ्ता पहले तो इस घर की तामीर मुकम्मल हुई। इससे पहले तो यहाँ खाली प्लाट था। आप क्या इसमें झुग्गी लगा कर रहती थी? जी। इसके सख्त होते तेवरों पे छोटू उल्टे कदमों वापस भागा। रोमियो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। गिरता पड़ता छोटू बाहर आया था। आए ज़रा इसे, मैं ब्याह कराती हूँ इसका। हानी ने दूरबीन एक तरफ रखी और आस्तीन ने मोड़ ली। अब इसका सारा गुस्सा छोटू पे निकलना था। जासूसी का 5वां स्टेप। वो दोनों उदासी से खिड़की से लगी नीचे फरहाद के गेट को देख रही थी, जहाँ वो वॉक के लिए निकल रहा था। जब सनी पीछे से आकर बोला, क्या? इन दोनों ने पलट कर देखा। टारगेट का ताक़ुब। वो जहाँ भी जाए इसका पीछा किया जाएगा। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल बाहर को भागी। मगर कुछ कहता सनी हड़बड़ाकर साइड पे हुआ। वो दोनों दौड़कर बाहर निकली। अब तेज़ी से आगे पीछे सीढ़ियाँ उतर रही थीं। मगर खासे फासले से आपा सनी ने तासुब से बात मुकम्मल की, लेकिन वो सुने बगैर ही जा चुकी थी। फरहाद अभी अपने गेट से चंद कदम आगे ही बढ़ा था। हाथ में कुत्ते की जंजीर थी जो कि दुम हिलाता मज़े से इसके पीछे जा रहा था। हानी गेट पे एक लम्हे को रुकी। दुपट्टा सर पे लेके खासा आगे तक कर लिया। नगीन ने फ़ौरन यही किया। वो दोनों अब सर झुकाए तेज़ तेज़ कदमों से इसके बिल्कुल पीछे चलने लगी थी। वो जंजीर पकड़े अपने खूबसूरत बरतानवी लबो लहजे में अंग्रेज़ी में कुत्ते से बातें करता इनसे चंद कदम ही आगे था। थोड़ी दूर जाकर वो एकदम रुका। इन दोनों को भी ब्रेक लगे। लम्हे भर को ठहर कर पीछे मुड़ा। वो भी हड़बड़ा कर पीछे को पलटी। चंद सानिये वो इन दोनों लड़कियों की पुश्त को देखता रहा, फिर सर झटक कर वापस पलटा। वो फिर से दुपट्टों के घूंघट निकाल ले इसके पीछे हो ली। चंद कदम आगे फरहाद एकदम रुका और कुत्ते की जंजीर खींचता एक तरफ खड़ा हो गया। वो जो इसके पीछे नाक की सीध में चली आ रही थी बौखला गई, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अब चलती ही रहती। सो सर झुकाए आगे बढ़ गई। वहीं सड़क के किनारे खड़ा रह गया। ये रुक क्यों गया है? पता नहीं, ज़रा देखो तो क्या कर रहा है। नगीन ने गर्दन ज़रा सी मोड़ कर देखा। मुँह बनाते हुए वापस सामने को हुई। दोनों कुत्ते खड़े हम पर हंस रहे हैं। फिर अब क्या करें, चलते ही रहें? नगीन ने शाने उचका दिया। हानी झुंझला कर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। सारे स्टेप फेल हो गए तुम्हारे। कोई काम की बात बताइए तुमने अभी तक। वो नीम जान सी काउच पे गिरी सनी पे बरस रही थी, जो इत्मीनान से किताब चेहरे के सामने किए बैठा था। एक तो सुबह की गर्मी, ऊपर से रोज़े में वाक। अब इस आधे अंग्रेज़ का तो पता नहीं रोज़ा था या नहीं। वो तो रोज़ ही वाक पे निकल खड़ा होता था, मगर वो तो बेहाल हो रही थी। आपा, मैंने कहा भी था फासले से ताक़ुब कीजिएगा। ख्वाब में कहा होगा, हमने तो नहीं सुना। और क्या फ़ायदा हुआ ताक़ुब करने का? कौन सी मालूमात मिली? क्या आप जानती हैं कि ताक़ुब के दौरान टारगेट जिससे भी मिले या जो गुफ्तगू करे, इस शख्स से भी मालूमात मिल सकती हैं। आहो, वो बात कर रहा था अपने प्यारे कुत्ते से। अब क्या मैं कुत्ते से इसकी ज़ुबान में भौं भौं शुरू कर देती? बेशक कुत्ते से गुफ्तगू में भी क्ल्यू मिल सकता था। सुनी बात सुननी ही चाहिए, जाने भी दो। वो बोल रहा था अंग्रेज़ों वाली फूं फां अंग्रेज़ी, जबकि मुझे तो अंग्रेज़ी फ़िल्मों की अंग्रेज़ी भी बग़ैर पढ़े समझ में नहीं आती। इसकी खाक आना थी। तेज़ पंखे तले बेहाल सी लेटी इसे लान तान कर रही थी, सिर्फ इसलिए घुनने मीसने को शक ना। वो कॉलोनी के पूरे 3 चक्कर काट कर आई थी। मगर हानी शाम को भी तो कहीं जाता है, तब भी तो इसका पीछा किया जा सकता है। मैं नहीं कर रही कोई पीछा वीछा, मुझे माफ़ रखो। इसने हाथ जोड़ दिए। नगीन घुटनों पे सर रखे कुछ सोचने लगी। यह अलग बात थी कि अफ्तारी के बाद ज़रा सी देर को मैदे को करार आया तो वो सारे दावे भूल भाल कर फिर से इसके ताक़ुब के लिए तैयार हो गई। कार उन्होंने कॉलोनी के सिरे पर रोकी हुई थी। वो जानती थी कि फरहाद यहीं से गुजर कर निकलेगा, और वाकई चंद ही मिनट बाद इसकी गाड़ी जन से उनके बराबर से गुजरी। चलो, इसने फ़ौरन एक्सलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। आज वो बहुत एहतियात से इसका पीछा कर रही थी, मगर नगीन बहुत डरी हुई थी। हानी, अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो? डराओ तो मत।
इसे खुद भी डर लग रहा था, कहाँ वो पूरा एक आदि मुजरिम, कहाँ वो सिर्फ 2 अदद तन्हा मासूम जवान लड़कियाँ। हाय अल्लाह, इसे खुद पे तरस आने लगा। मगर मुल्क व कौम के लिए, हाँ नगीन, मुल्क व कौम के लिए हमें करना होगा। इसने जोश में स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारा। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी। तुम्हें इससे इश्क हो गया? नगीन को शौक लगा। अरे इससे नहीं, मुल्क व कौम से। इसने झुंझलाकर मोड़ काटा। फरहाद की गाड़ी सामने ही थी। अरे ये अस्पताल क्यों आया? अस्पताल की पार्किंग में इसे गाड़ी बढ़ाते देखकर दोनों हैरान हुई थी। क्या पता इसका वो बॉस बीमार हो। यकीनन किसी गरीब की बद्दुआ लगी होगी। वो अब गाड़ी से निकलकर उसके पीछे आई थी। रिसेप्शन के करीब फरहाद जेब से मोबाइल निकालते हुए रुका और चमकती स्क्रीन को देखा। फिर चंद बटन दबाए, शायद किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। मौका अच्छा था, वो इससे पहले अंदर आ गई। अगर अपने बॉस से मिलने आया है तो रिसेप्शन से पता करने ज़रूर आएगा। आओ। हानि इसका हाथ थामे फ्रंट डेस्क पे ले आई। अब वो रिसेप्शन डेस्क पे कोहनी रखे फरहाद की सिमत पुश्त किए मुंतज़िर थी कि कब वो आए। नगीन सामने सतून की ओट में नोटबुक और पेन लिए तैयार खड़ी थी। शीशे का दरवाज़ा खोल कर वो अंदर आता दिखाई दिया। बेहद पुरएतमाद मगरूर अंदाज में चलता वो सीधा रिसेप्शन डेस्क की तरफ आया, जहाँ हानि ने इसे आते देख कर पूरी तरह इसकी तरफ पुश्त कर ली थी। एक तो कम वक्त बला का हैंडसम था, ऊपर से था भी दुश्मन। एक्सक्यूज़ मी मिस सिस्टर। करीब आकर इसने अपने खूबसूरत लबो लहजे में पुकारा। एक इतना डैशिंग बंदा आपको सिस्टर कहकर बुलाए तो आपका दिल अपना नहीं, इसका सर दीवार में दे मारने को ज़रूर चाहेगा। जी सर, उसने खुश दिली से जवाब दिया। शुक्र है, इसी को सिस्टर कहा था। बेख्तियार इसकी मशकूर हुई। डॉक्टर नौमान कहाँ होंगे? वो इसके बिल्कुल साथ खड़ा पूछ रहा था। कीमती मशहूर कौन परफ्यूम की महक इसके होश उड़ाए दे रही थी। वो रहे डॉक्टर नौमान। वो शुक्रिया कहकर कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। नगीन सतून के पीछे से निकली और वो वहाँ से हटी। दोनों साथ मिली, फिर एक साथ इसके पीछे चल पड़ी। एकदम वो रुका, आहट महसूस करके पलटा। वो भी बौखलाकर वापस मुड़ी। इसने आंखें सुकेड़कर चंद लम्हे इनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। तभी सामने सफ़ेद ओवरऑल बाजू पर डाले एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। फरहाद को देखकर इसके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट उभरी। अरे ये ईद का चांद हुए फरहाद हसन, कब तुलू हुए? डॉक्टर नौमान ने गर्मजोशी से इसे गले लगाया। पहली काम की बात पता चली, इसका पूरा नाम फरहाद हसन है। नगीन हानि के साथ इन दोनों की तरफ पुश्त किए खड़ी जल्दी जल्दी नोटबुक पे कलम घसीटने लगी। बको मत, और सॉरी यार, मैं पहले नहीं आ सका। अंकल की तबीयत अब कैसी है? लिखो, टारगेट ने बॉस के लिए अंकल का कोड वर्ड इस्तेमाल किया है। इसने नगीन के कान में सरगोशी की। अब बेहतर है, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। और तुम सुनाओ, तुम्हारी प्रिंसेस कैसी है? अभी तुम्हारी कैद में आई या नहीं? कैद? वो चौंकी। नगीन के भी कान खड़े हुए। कैद में तो बस समझो आ ही गई है। मुबहम सा मुस्कुराया। हानि का रुआं रुआं काँप उठा। सोच लो, कहीं ज़बरदस्ती पे जंजीरें तोड़वा कर भाग ना जाए। तो इसने किसी लड़की को जंजीरों से कैद कर रखा है। शदीद सदमे में घिरी इनकी बातें सुन रही थी। हमारी जंजीरें बड़ी मजबूत है, नहीं भागेगी, बेफिक्र रहो। वो दोनों बातें करते दूर जा रहे थे। हानि ने फटी फटी आंखों से पलट कर इन दोनों को देखा और फिर नगीन को। ये लड़कियां भी अगवा करता है? हाँ, और हम भी लड़कियां हैं। मुझे डर लग रहा है, अगर इसने हमें देख लिया तो। भागो। वो नगीन का हाथ खींच कर धड़कते दिल के साथ इसे बाहर खींच लाई। बस कुछ दिन के ताक़ुब की बात है, फिर इसे गिरफ्तार करवा ही देंगे। हानि जोश से कहती नगीन के हमरा घर में दाखिल हुई थी। कल कैदी लड़की का सुनकारा जिन्होंने फरहाद का वाक़ पे पूरा पूरा पीछा किया था। कोई कामयाबी तो नसीब न हुई, मगर इनका जोश दीद नहीं था। मेरा गुमान है कि यह आज कल में ज़रूर उस जगह जाएगा जहाँ इसने इस मासूम लड़की को छुपा रखा है। और तब हम सामने कड़े तेवर लिए बैठी खाला को देखकर हानि की ज़ुबान को ब्रेक लगे। खाला? वो बमुश्किल मुस्कुराई। कहाँ से आई हो? लाहौर से। आप भूल गई प्यारी खाला। इसने मुस्कुरा कर आँखें झपकी। खाला के तेवर अच्छे नहीं थे। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को, वो कहते थे लड़कियों को दो सोने का निवाला। देखो उकाब की नज़र से। उनके दौर में शेर नापैद थे क्या? इसे मुहावरे की टांग तोड़ने पर सख्त गुस्सा आया। बको मत। वो फरमाते थे लड़कियां अगर यूं लोर लोर फिरें तो मानो कोई गड़बड़ ज़रूर है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा गए थे, और नहीं तो क्या। वो ताइदी अंदाज में सर हिलाती उनके सामने बैठने लगी। ख़बरदार, जो मुझे मक्खन लगाया वहीं सामने हो जाओ। खाला? वो रूहान सी हो गई। नगीन ने हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि दुम कटी लोमड़ी अकेली क्यों हो। अब मेरी बात कान खोल कर सुना। सुबह मेरे पास फरहाद आया था। कौन फरहाद? इसने मासूमियत से नगीन को देखा। हाँ हाँ, अब तुम्हारी याददाश्त जवाब भी दे गई ना।
خالہ تنزیہ بولی۔ وہ کہہ رہا تھا اس کالونی کی لڑکیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل آ رہی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بد تہذیب ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ آگے سنیے، وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی 2 لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہاں تو ہوں گی کوئی 2 فضول سی لڑکیاں، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ ہے ہانی بیٹا کہ حیرت انگیز طور پر ان 2 لڑکیوں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سارے سٹائل اور فیشن کاپی کرتی ہیں۔ وہ ان کے طنز پر اترا کر گردن اکڑاتے ہوئے مسکرائی۔ جی بیٹا، مگر اتفاق سے ان کے نام ہانی اور نگین ہیں۔ واو، کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ بکو مت، خالہ کو جلال آ ہی گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبر میں ان کے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کر پرائے بندے کے پیچھے چل دیں۔ محلے میں ہماری کوئی عزت ہے، اگر بات پھیل گئی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی۔ کتنی؟ بے اختیار لبوں سے پھسلا، گڑبڑا کر زبان روکی۔ کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ نگین منہ لٹکائے صوفے پہ گر گئی، جبکہ وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ اس ڈاکو، چور، دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگائے، اب تو اس کو اندر کرانا ہی پڑے گا۔ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی، مگر اب اماں سے نظر بچا کر ہم اس کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے۔ جا سکتے ہیں؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی۔ اس کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک اٹھی تھیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ پرجوش سے اس کے قریب آئی۔ ریسٹورنٹ کے خوابناک ماحول میں لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ پیچھے دھیما دھیما سا میوزک، چمچوں اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز اور اے سی کی خنکی۔ وہ مدھم روشنی میں ڈوبی کونے والی میز پہ موجود تھیں۔ آج فرحاد کا تعاقب ان کو اس ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا۔ اب ہم حلیہ بدل کر جائیں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے۔ نگین اس کے آئیڈیا پہ حیران ہی رہ گئی۔ ڈارک میک اپ، بڑے سیاہ گلاسز اور مختلف ہیئر سٹائل میں اپنا بدلا سوروپ اس نے نگین کو دکھایا تو وہ زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ تم پہچانی جا رہی ہو ہانی، تبھی اچھی لگ رہی ہوں، مگر کوئی بات نہیں، وہ کون سا ہمیں بہت دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے بال مسکارا ڈائی سے ریڈ ڈائی کر لیے تھے۔ اب وہ اس پہ نظر رکھے ادھر بیٹھی تھی، وہ سامنے والی ایک ٹیبل پہ بیٹھا۔ موبائل کے بٹن کافی دیر سے دبائے جا رہا تھا، اس وقت رش کم تھا۔ تبھی ویٹر اس کا آرڈر لے آیا، پینا کولا کے لبالب بھرے 2 گلاس۔ 2 گلاس؟ ہانی نے گہرے گلاسز کے پار سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی سے ملنے آیا، یا پھر شاید اس لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کرنے۔ نگین نوٹ بک میں سر گھسائے قلم چلائی جا رہی تھی۔ ویٹر نے فرحاد کے سامنے میز پر 2 گلاس سیٹ کیے۔ وہ ابھی تک موبائل پہ مصروف تھا، بس سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ سیاہ جیکٹ اور سفید شرٹ میں بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ہانی 8 بج گئے۔ دفعتاً نگین نے پریشانی سے سر اٹھایا۔ ہانی نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ نہیں بجے، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اس نے اطمینان سے نگین کو تسلی دی۔ وہ جانتی تھی سچ بتانے کی صورت میں نگین بدحواسی ہو کر باہر بھاگے گی۔ دفعتاً وہ چونکی۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص فرحاد کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ آہٹ پہ فرحاد نے سر اٹھایا، پھر مسکراتا ہوا اٹھا۔ یقیناً اس لڑکی کا وارث ہے، شکل تو دیکھو کتنی مسکینوں والی ہے بیچارے کی۔ اب فرحاد گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، شاید بیٹھنے پہ اصرار، مگر اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کوٹ کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا۔ ہانی کے سارے حواس بیدار ہو گئے، بے اختیار گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ اب وہ شخص پھولا ہوا خاکی لفافہ فرحاد کو تھما کر کچھ کہہ رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور فرحاد نے لفافے کو احتیاط سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا، تبھی اس کی نگاہ ان دونوں پر پڑی۔ سر جھکائے نوٹ بک پہ کچھ لکھتی نگین اور گردن اونچی کر کے اس کو دیکھتی ہانی، جس نے اس کے متوجہ ہونے پر گڑبڑا کر رخ پھیرا تھا۔ فرحاد کے ماتھے پر ناگواری ابھری، شکن ابھر آئی۔ لب بھینچ کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کی ٹیبل تک آیا۔ اب بھاگنا بے سود تھا، وہ جان کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں؟ عین ان کے سر پہ پہنچ کر وہ درستی سے بولا۔ نگین کے ہاتھ سے قلم پھسلا، گڑبڑا کر اس نے سر اٹھایا، مگر ہانی نے پرسکون انداز میں گردن اس کی جانب موڑی۔ ہم سے کچھ کہا؟ کیا میں آپ کو دیواروں سے باتیں کرنے والا لگتا ہوں؟ لگنے کو تو آپ بہت کچھ لگتے ہیں، زیر لب بڑبڑائی، پھر سر جھٹکا۔ خیر، آپ کی تعریف۔ آپ کیوں میرے پیچھے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں؟ مسئلہ کیا آپ لوگوں کو؟ خاصا برہم تھا۔
हानि ने जवाबन हैरत से नगीन को देखा। तुम इनको पहचानती हो शाइस्ता? कौन शाइस्ता? नगीन उलझी। इसने मेज़ के नीचे से अपना पाँव नगीन के पाँव पे मारा। तुम शाइस्ता, तुमसे पूछ रही हूँ, ये साहब कौन है और क्यों हमें तंग कर रहे हैं? अपनी अदाकारी के जौहर आप कहीं और दिखाइएगा। मेरी बात कान खोल कर सुनो तुम दोनों। वो आपसे तुम पर उतर आए। आइंदा अगर मुझे अपने पीछे तुम्हारी सूरत नजर आई तो अपने पाँव पर घर नहीं जाओगी। तो ये क्या हमें टैक्सी करवा के देगा? नगीन ने हैरत से इसे देखा। वो सख्ती से दो टोक बात करके वापस पलट चुका था। आया बड़ा कहीं का नवाब, सारे ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम भी कुछ नहीं समझती हो। गुस्से से उठ खड़ी हुई नगीन मुंह लटकाई इसके पीछे थी। कल टारगेट ने यकीनन धमाके की या इस लड़की के तावान की रकम वसूल की है। मजाल है जो इसे ज़रा भी शर्म आई हो। मुसलसल कमरे में टहल टहल कर बोलती अपना गुस्सा निकाल दी थी। नगीन बैक ग्राउंड से टेक लगाए नॉवेल में गर्क थी। पता नहीं किस मासूम लड़की को कैद कर रखा है, जाने क्या हाल हुआ होगा इसका। नगीन ने बहुत ध्यान से पढ़ते हुए सफ़ा पलटा। जंजीरों से बांध रखा है जालिम इंसान ने इसे। बस एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाए, सारी ज़िंदगी के लिए जेल ना भिजवा दिया तो मेरा नाम भी हानि नहीं। तुमने सुना जो मैंने कहा? हाँ, नगीन ने बौखलाकर सर उठाया। तुमने कहा पानी नहीं है। तभी खाला कमरे में दाखिल हुई। बस आखिरी फिक्रा कानों में पड़ा। परेशान हो गई। क्या पानी नहीं है? अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वो कहा करते थे जिस घर में पानी बार बार ख़त्म हो इसके घर वालों के रिस्क से बरकत उठ जाती है। ठहरो, मैं मोटर चलवाती हूँ। हानि ने सर पकड़ लिया। यहाँ कोई ठीक से बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और तुम क्यों सर पकड़े बैठी हो? अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वो कहा करते थे अगर सर का दर्द एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर जाता नहीं है। दर्द नहीं है खाला। फिर उठो, तुम्हारी अम्मा का फ़ोन आया PTCL पर। वो गहरी सांस लेती उठी। अम्मा मोबाइल नहीं रखती थी। ये क्या कि ज़रा सी बात की और क्रेडिट ख़त्म। ऐसी गुर्बत में हमसे तो गुजारा नहीं होता। फिर उन्होंने कभी मोबाइल नहीं रखा। अपना PTCL इन्हें बहुत प्यारा था। लंबी सी तार, जहाँ चाहे खींच कर ले जाओ। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वो कहा करते थे लड़कियां जल्दी अपने घरों की हो जाएं तो अच्छा है। कमरे से निकलते हुए इसके कान में खाला का फिक्रा पड़ा। वो ज़रा से ठिठक गई, भाग कर नीचे आई। हेलो अम्मा। अम्मा से सलाम दुआ के बाद इसने 3 मिनट तक घर का पूरा अहवाल सुना डाला। मासी की चोरियों, काम चोरियों की दास्तान, फुप्पो का किसी महफिल में टोक देना और खाला की जर्मनी से भिजवाए गए तोहफ़ों की तफसील सुनकर इसने सरसरी अंदाज में और सब खैरियत है पूछा तो अम्मा चंद लम्हे को रुकीं। तुम्हारी खाला ने कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं देखा तुम्हारे लिए? मालूम नहीं, वो ख़ुद भी उलझ गई। मगर उन्होंने तो खैर कुछ कहते कहते रुक गई। अच्छा, वो अफ़ान के लिए तुम्हारी फुप्पो इसरार कर रही हैं। अच्छी बात है, वरना कहीं इस दफ़ा भी फेल ना हो जाए। इसरार करके पढ़वाना चाहिए। ओहो, बात तो पूरी सुनो। उन्होंने अफ़ान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। वो एकदम चुप सी हो गई। जो तुम बेहतर समझो मुझे आगाह कर देना, सोच लो। उसने आहिस्तगी से फ़ोन क्रेडल पर रखा। एकदम दिल डूब कर उभरा था। लाउंज में कोने पे किताबों के ढेर से सनी ने सर निकाला। क्या उन्होंने आपका रिश्ता पक्का कर दिया? वो चौंकी। तुम्हें किसने बताया? अम्मा कुछ कह तो रही थी। इसने लापरवाही से शाने उचकाते हुए किताब का सफ़ा पलटा। पता नहीं। सर झटक कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हाँ कर दें आपा। वो ठिठक कर पलटी। सनी किताब पर निगाहें जमाए मुस्कुरा रहा था। उसके देखने पर सर उठाया, फिर नाक पे फिसलती ऐनक पीछे की। हाँ कर ही दें आपा, क्योंकि साथ वाला तो दहशतगर्द निकला। इसने मुस्कुराकर फिर से किताब चेहरे के सामने कर ली। वो मुतहैयर सी साकित रह गई। कितनी अजीब बात की थी सनी ने। सर झटक कर वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। दिल की हालत अजीब हो रही थी। नगीन इसी तरह बैकग्राउंड से टेक लगाए नॉवेल में गर्क थी। वो खिड़की के सामने आई और पर्दा हटाया, फिर दूरबीन उठाकर आंखों से लगा ली। तभी फरहाद की गाड़ी उसके पोच में रुकी, क्योंकि साथ वाला तो दहशतगर्द निकला। अफ़ान का रिश्ता, साथ वाला। चुप करो, इसने अंदर उठती आवाज़ों को घोरखा। वो ड्राइविंग डोर खोल कर निकला, फिर पिछली सीट से चंद शॉपिंग बैग्स निकाले। वर्दा, V9 जनरेशन्स, ये खाली जनाना शॉपिंग करके क्यों लाया है? वो अब शॉपिंग बैग्स थामे चाबी से दरवाजे का लॉक खोल रहा था। कहीं ये इस लड़की के लिए तो नहीं लाया? यानी वो लड़की इसके घर में। अगले गुमान ने इसे दहला दिया। हाँ, जैसे नॉवेल्स में होता है। नगीन भी नॉवेल छोड़कर दौड़ी चली आई। इसको इस लड़की से प्यार हो गया होगा, तभी ज़बरदस्ती निकाह करने के लिए कैद कर रखा होगा। अब प्यार होगा तो इतनी महंगी शॉपिंग करके तो लाएगा, वरना याद है V9 के प्रिंट्स तो हम दूर से ही देखकर गुजर जाते हैं। प्यार? इसे अजीब सा लगा। दिल की हालत गैर होने लगी। वो क्या किसी और से प्यार कर सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है?
वो साथ वाला तो दहशतगर्द निकला। एकदम इसने दूरबीन बेड पर रख दी और ख़ुद तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। जासूसी का छठा स्टेप। सनी मेज़ पे पाँव रखे सोफे बैठा बोल रहा था, टारगेट के घर और सामान की तलाशी। इसने मुझे अपनी नौकरानी तो नहीं रखा, वरना मैं ये ज़रूर कर लेती। इसने तलखी से सर झटका। आजकल वो बात बेबात तल्ख हो जाती थी। रह रहकर जंजीरों में जकड़ी खूबसूरत लड़की तसव्वुर जहन में उभरती, जिसे मिन्नत करके वो जालिम मगर हैंडसम बंदा कुछ खिला रहा होगा। दफ़ा दूर। वो चिढ़कर खड़ी हुई। अब वो आजिज़ आ गई थी इसकी जासूसी से। ऊपर कमरे में आई तो नगीन आंखों से दूरबीन लगाए खिड़की के सामने बैठी थी। हानि इसे आते देखकर खुशी से इसकी तरफ घूमी। क्या है? फरहाद अभी अभी घर से निकला है, मेरी बला से, दुनिया से भी निकल जाए। मगर दिल ने पूछा, क्या वाकई? तो वो दिल से निगाहें चुरा कर रह गई। हानि सुनो तो, मैंने खुद देखा है, वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गया है। यकीनन इसके घर में वो लड़की कैद होगी। चलो चलकर इसे आज़ाद कराते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, इसे इस लड़की से रत्ती बराबर भी हमदर्दी ना थी। घुन्नी मीसनी अदाएँ दिखाकर फंसा रखा होगा बेचारे को। अच्छा है वहीं सड़ती रहे। मगर वो बेचारा कब से हो गया हानि? कोई इसके अंदर हंसा था, मुझे नहीं पता। वो झुंझला गई। किससे लड़ रही हो? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कह रही थी? इसका घर खुला है, चलो इस लड़की को आज़ाद करवाएं। मगर इससे क्या होगा? बेदिली से बैठी रही। भाई वो लड़की इसके खिलाफ़ पुलिस के सामने गवाही देगी। हानि ने चौंक कर इसे देखा। अगर इसने गवाही दी तो क्या फरहाद इससे नफ़रत करने लगेगा? और नहीं तो क्या, जो हमारे खिलाफ़ गवाही दे इससे हमें नफ़रत तो हो ही जाती है। सच्ची? वो खुशी से उठकर बैठी, फिर संभल गई और चेहरे पे संजीदगी तारी कर ली। चलो। वो दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। लाइट का स्विच हाथ ही नहीं आ रहा था। इसने ज़रूर लड़की को तहखाने में छुपा कर रखा होगा। मगर इस कॉलोनी के तो सारे घरों के डिज़ाइन एक से हैं हानि, और ये तो किराएदार है, तहखाना कैसे बनवा सकता है इतनी जल्दी? एक तो तुम इतनी अक्लमंदी की बातें ना किया करो। चलो फिर कमरों में देख लेते हैं। वो सहज सहज कर आगे बढ़ रही थी। लाउंज में घुप अंधेरा था। वो दीवारों का सहारा लिए ज़रा आगे आई तो एक दरवाजे से हाथ टकराया। हानि ने दरवाज़ा धकेला। चरर की आवाज़ के साथ वो खुलता चला गया। हानि मुझे डर लग रहा है। तो मुझे तो ना डराओ। हाय हानि, अगर इसके घर में जिन भूत हुआ तो? नगीन मेरी जान तो मत निकालो। इसका अपना दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बमुश्किल खुद पे काबू रखे इसने कमरे में कदम रखा। एसी की खुनकी अभी तक बाकी थी। किसी कीमती परफ्यूम की महक कमरे में फैली थी। वो अंधों की तरह टटोलती आगे बढ़ रही थी जब घुटना किसी सख्त चीज़ से टकराया। उफ! वो कराह कर रह गई। फिर हाथ से टटोला। लकड़ी का सिरा था, शायद बेड की पाई थी। ये तो इसका बेडरूम है, आओ किसी और कमरे में। तभी पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ओ गॉड, वापस आ गया। उनके रहे सहे औसान भी जाते रहे। अब क्या करें? चलो कहीं छुपते हैं। खिड़की के पर्दे ज़रा सा सरकाए। बाहर से छन कर आती चांदनी में इसे कोने में रखे कुशन नज़र आए। आओ। वो नगीन का हाथ थामे इस तरह बढ़ी। लाउंज के दाखिली दरवाजे का हैंडल एक क्लिक के साथ खुला और भारी बोर्ड दाखिल होने की आवाज़ आई। वो दोनों कुशन के पीछे बैठ गईं। एक बड़ा कुशन अपने ऊपर रख लिया और पीछे झूलता पर्दा इस पर डाल दिया। लाउंज के फर्श पे जूतों के चलने की आवाज़ आ रही थी। हानि का सांस रुकने लगा। अगर पकड़ी गई तो? इसे चश्मे तसव्वुर में अपना आप जंजीरों में जकड़ा दिखाई दे रहा था। वह बेडरूम की तरफ आ रहा था। कदमों की चाप नज़दीक आ गई थी। तभी नगीन ने हौले से सरगोशी की। टाइम क्या हुआ है? फरहाद का साया सही से दरवाजे में खड़ा दिखाई दे रहा था। वह जैसे मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रहा था। हानि ने चांदनी में चमकती वॉल क्लॉक देखी और फिर चेहरा नगीन के कान में तकरीबन घुसाकर बहुत धीरे से बोली, 8 बज गए हैं। क्या? नगीन हलक के बल चिल्लाती हुई खड़ी हुई। कुशन नीचे गिरा, पर्दा हट गया। साथ ही फरहाद ने लाइट ऑन कर दी। सारा कमरा रोशनी में नहा गया। बिखरे कुशन, पीछे हक्का बक्का बैठी हानि और खड़ी हुई नगीन। 8 बज गए, तुमने मुझे बताया नहीं? परेशानी से चिल्लाई थी। आज फ्राइडे है, मेरा नसीब आ रहा होगा। हाय, पता नहीं बेचारी नाजिया का क्या बना। इसी परेशानी के आलम में दरवाजे की तरफ भागी। फरहाद रास्ते में खड़ा था, मगर नगीन को जैसे होश ना था। हटें जी। वो इसे एक तरफ करके बाहर निकल गई। हानि शॉक्ड सी बैठी रह गई। वो इसके सामने ही खड़ा था, सीने पर बाजू बांधे, दीवार से टेक लगाए, कड़े तेवरों से इसे घूर रहा था। मेरा नसीब के चक्कर में नगीन इसका नसीब गारत कर गई थी। आप नीचे क्यों बैठी हैं मिस उम्मे हानि? ऊपर आकर बैठिए ना। तंज में डूबी आवाज़ पे वो होश में आई। हाँ, वो ड्रामा लग गया होगा। वो उठी और नगीन की तरह सर झुकाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी।
मगर फरहाद ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बंद किया और सामने आ खड़ा हुआ। वो ड्रामा, वो मिनमिनाई। ड्रामा तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। वो कहते हुए 2 कदम आगे बढ़ा। वो उल्टे पाँव पीछे हटी। तो आप इधर क्या करने आई थी? वो हमारा केबल नहीं आ रहा था तो ड्रामा देखने। मेरे बेडरूम में आपको टीवी दिखाई दे रहा है? हानि ने इधर उधर देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि आप टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते? वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे ही उल्टे कदमों पीछे हो रही थी। शक्ल से तो आप बहुत मासूम लगती हैं। शुक्रिया, सब यही कहते हैं। वो मासूमियत से मुस्कुराती पीछे हटती दीवार से जा लगी। ओह, पीछे दीवार, सामने वो, अब क्या करे? मगर सबको क्या मालूम इतनी मासूम शक्ल भी चोरी करने के लिए किसी के घर में दाखिल हो सकती है। चोरी? वो जो शर्मिंदा सी सर झुकाए खड़ी थी तड़प कर सर उठाया। चोर होंगे आप, आपके नान के दाँत के। मैं आपको चोर लगती हूँ? तो मेरे घर में यूं क्यों दाखिल हुई? अरे भाड़ में गया आपका घर। मैं तो बस इस बेचारी को छुड़ाने आई थी जिसे आपने अगवा करके कैद कर रखा है। चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आपको किसने बताया इसके बारे में? पल भर को साकित रह गई। आपने वाकई? एक मोहम सी उम्मीद थी शायद इसके गुमान झूठे हों, वो अच्छा बंदा हो, वो सब इसने खुद से फ़र्ज करके गलत समझाओ। मगर इसके एतराफ़ ने इसे तो हैरान ही कर दिया। जी, मैंने अपनी मंगेतर को अगवा करके ऊपर वाले कमरे में कैद कर रखा है। शायद अब मुझे आपको भी इधर बांधना पड़े। और क्या क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? नहीं नहीं, वो बस चांद रात वाला ब्लास्ट। बेख्तियार ज़ुबान दांतों तले दबाई। अच्छा, ये खबर भी आपको है? अब तो मुझे आपको लाजमी उधर बांधना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दें ताकि आप मेरे ख़िलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट कर दें। नहीं, मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दें। इसका गला रुंध गया और आँखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। और मैं कैसे यकीन करूँ कि आप अपना मुँह बंद रखेंगी? वो हकलाई। ये तो पक्का इरादा था कि किसी तरह यहाँ से निकले फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करेगी। आप यही सोच रही होंगी ना कि मुझे बहला फुसला कर आप यहाँ से निकलें और घर जाकर छोड़ते ही पुलिस को कॉल कर दें। नहीं नहीं, वो हकलाई। कम वक्त तो टेलीपैथी भी जानता था। मुझे पता है तुम यही करोगी। सो मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे घर के हर मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन और इंटरनेट पे मैंने ऑब्जर्वेशन लगा रखी है। और अगर तुमने पीसीओ के लिए घर से कदम बाहर निकाला भी तो मेरे बंदे तुम्हें वॉच कर रहे हैं। जिस लम्हे तुमने गड़बड़ की मैं इस लड़की को मार दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज़ इसको कुछ ना कहिएगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। और अगर चांद रात तक तुम घर से भी निकली तो? प्लीज़ मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे जाने दें। इसके आंसू टिप टिप गिर रहे थे। कोई गड़बड़ की तो याद रखना। धमकियाँ मेज़ अधूरी बात करके वो सामने से हटा तो वो बुरी तरह रोती हुई बाहर भागी। फिर अपने घर के बाहर इसने आंसू पोंछे। हानि अफसरदा बैठी नगीन इसे लाउंज में दाखिल होते देखकर बेख्तियार उठी। तुम ठीक तो? आई एम सॉरी। मैं चुप। वो गुर्राई। मगर मैं बिल्कुल चुप। वो सख्ती से कहकर काउच पर आ गिरी। तभी किताबों के ढेर से सनी ने कछुए की तरह गर्दन बाहर निकाली। क्या आप जानती हैं कि अगर जासूसी के सारे स्टेप फेल हो जाएं तो क्या करते हैं? हानि और नगीन ने सर उठाकर इसे देखा। तो अगला स्टेप इस्तेमाल करते हैं। महफूज अंदाज में कहता पहले की तरह शुरू हो गया। जासूसी का 7वां स्टेप, टारगेट की। हानि ने पैर से जूता उतारा और नगीन ने कुशन उठाया। अगले ही लम्हे दोनों चीज़ें सनी की तरफ उड़ रही थीं। वो गड़ाप से अपने ढेर में गुम हो गया। सारा इसी का कसूर है। इसे इतना मारो कि आइंदा ये गधा हमें फजूल मशवरे न दे। हानि दूसरा जूता उतार कर इसकी तरफ आई, मगर गधा किताबों के बीच से बचता बचाता सीढ़ियों की तरफ निकल गया था। मजाक मजाक में शुरू होने वाला खेल इतनी संजीदगी अख्तियार कर लेगा इसने तो सोचा भी नहीं था। कितनी दफ़ा घर से बाहर निकलने का सोचा या नगीन को कुछ बताने का, मगर हर बार इसकी धमकी याद आ जाती तो वो सहम जाती। दिल तो वैसे ही आजकल तो उठा हुआ था, हर शय से बेजार, नाराज़ और तन्हा। समझ में नहीं आता था कि करे तो क्या करे। आज सऊदीया में ईद हुई थी, यानी अब मुतवक्के तौर पे इधर चांद नज़र आ जाना था। और अगर आज की रात चांद रात हुई तो वो धमाका कर देगा। फिर क्या होगा? वो कितनी देर बेचैन से लाउंज में टीवी के आगे बैठी रही। रोयते हलाल कमेटी का इजलास शुरू हो चुका था, मगर मेंबर्स के तबसरे ही मुकम्मल नहीं हो रहे थे कि बात आगे बढ़ती। मेरा नावल किधर है? यहीं रखा था। मुझे क्या पता, तुम नहीं उठाया होगा। नगीन और सनी पीछे लड़ रहे थे। इसने पूरी लड़ाई तो ना सुनी, बस आखिर में सनी को गुस्से से चेहरे के आगे किताब करते और नगीन को पैर पटक कर बाहर जाते देखा था। चांद नज़र आने की खबर आ ही गई। इसका दिल डूब गया। कितने लोग इसकी बुज़दिली की वजह से आज मौत वो आगे सोच ना सकी और कमरे में चली आई। कितनी देर वो बिस्तर पर चित लेटी छत को देखती रही। दफ़ातन दरवाजे पे मध्यम सी दस्तक हुई।
वो कसली मंदी से उठी, दस्तक दोबारा हुई, फिर मुसलसल होने लगी। वो झुंझलाकर आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोला। कौन है? क्या मसला है? क्यों मुझे? वो जो गुस्से में बड़बड़ा रही थी एकदम शल रह गई। सामने खड़ी लड़की ने इसके हवास सल्ब कर लिए थे। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। दराज कद, लंबे सीधे बाल कमर पे गिरते हुए, नफासत से किया मेकअप, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और पाँव तक आता स्टाइलिश सा पिंक फ्रॉक। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। हानि को लगा कि इसने इसे पहले देख रखा है, मगर नहीं, वो नहीं, हरगिज़ नहीं। नगीन? वो मुतहैयर सी 2 कदम पीछे हटी। हाँ मैं। नगीन अपना दिल फरेब सरापा लिए मुस्कुराती दरवाजे में खड़ी थी। मुंह खोले हैरान सी रह गई। ये सब क्या था? तुमने कहा था हानि कि नगीन तुम्हारे गुमान के मुताबिक होगी, मगर वो क्या है कि गुमान दुनिया की सबसे छोटी बात को कहते हैं। पुरएतमाद मुस्कुराते लहजे में कह रही थी। होता ये है हानि कि बाज़ दफ़ा अपनी अक्लमंदी के ज़ोम में हम लोगों को कैटेगरीज़ में तकसीम कर देता है, बुरे, कम अकल, चालाक, जबकि हर इंसान दूसरे से इतना ही मुख्तलिफ होता है। तो हुआ यूं कि 6 साल हमारा राब्ता ना रहने के बाइस तुमने अपने जहन से वो 6 साल पुरानी ऐनक वाली कम अकल नगीन ना निकलने दी। हालांकि ऐनक तो लेज़र ट्रीटमेंट नहीं उतरवा दी, और कम अकली, उम्र और शऊर की बढ़ती मनाजिल ने। वक्त के साथ साथ हर परिंदा उड़ना सीख लेता है, मगर तुमने मेरी किसी बात से गुमान किया कि मैं वैसी हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो हानि को एक सबक देता है, ताकि वो ज़िंदगी में फिर कभी लोगों के बारे में यूँ राय कायम ना करे। इसने आहिस्ता से अपना खुला मुंह बंद किया। अंदर ही अंदर गुस्से का उबाल उठने लगा था, मगर नगीन इसी तरह कहे जा रही थी। सो मैंने एक प्लान बनाया। लाइब्रेरी से नावल पकड़े, ड्रामों का टाइम टेबल याद किया, फिर 0 नंबर की ऐनक ली और सनी और अम्मा को खामोश रहने की तंबीह की। मगर जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी मदद की वो फरहाद थे। आइए फरहाद, आपको अपने कज़न से मिलवाऊँ। दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुआ। ब्राउन कुर्ते में मलबूस वो मुस्कुराहट दबाए नगीन के साथ आ खड़ा हुआ। वो सीने पर हाथ बांधे, लब भींचे, खामोशी से दोनों को देखे गई। ये फरहाद हैं, हसन चचा के बेटे। हाल ही में MBA करके इंग्लैंड से आए हैं। चचा और बाकी लोगों ने भी ईद के बाद आना है। सब बड़ी फैमिली के बाइस उन्होंने पूरा घर रेंट पर लिया, और ये मेरे प्लान का हिस्सा भी नहीं थे। मगर जब तुमने इनकी बातें सुनी, जिनमें ये हसन चचा से एक इंकशाफ करके फैमिली में धमाका करने की बात कर रहे थे, और धमाके के पीछे बम का लफ्ज़ तुमने खुद ऐड कर लिया, तो हमने सोचा चलो ऐसा है तो ऐसे ही सही। जब शक की ऐनक फिट करके देखा तो उनका हर अमल मशकूक नज़र आया। चाहे ऑफिस के कोई कागजात लेने रेस्टोरेंट गए, या दोस्त के वालिद की अयादत के लिए अस्पताल, या फिर मंगनी की जंजीरों में मुहावरतन अपनी मंगेतर को जकड़ने का जिक्र किया, तुम इन पे शक ही करती रहीं। चांद रात में उन्होंने इसी लड़की के हवाले से एक धमाका करना था, मगर खैर, आई होप कि इस मासूम शरारत पे तुम हमें माफ़ कर दोगी, क्योंकि हम तुम्हारे अच्छे दोस्त भी तो हैं ना। नगीन ने शरारत से चमकती आंखों से फरहाद को देखा, जिसने मुस्कुराहट दबाते शाने उचका दिए। यह आप दोनों का मामला है, मैं क्या कह सकता हूँ। इसने सुलगती निगाहों से फरहाद को देखा। वो गुस्से की अदाकारी, खाला को लगाई शिकायतें, सब ड्रामा था। और खाला को तो अल्लाह करे उनके ससुर मरहूम कब्र से पूछने आए। अच्छा गिफ्ट दिया है आपने मुझे ईद का, वो स्पार्ट लहजे में कहती बेड पे अपना मोबाइल तलाश करने लगी। अभी बेल बजी थी, शायद इसके मोबाइल पे कोई मैसेज आया था। फरहाद ने नगीन को देखा तो इसने सब ठीक हो जाएगा इशारा किया, फिर हानि की जानी पलटी। तो तुमने हमारी शरारत माफ़ कर दी? हानि ने मोबाइल बेड से उठाया और चमकती स्क्रीन को देखते हुए शाने उचकाए। माफ़ी का अख्तियार हम चारों को कहाँ हासिल? अपनी बात करो। इसने मैसेज खोला। खाला के नंबर से SMS आया था। हानि आपा, अगर आप इन दोनों से बदला लेना चाहती हैं तो जो मैं कहूँ वही करें। सनी, इसने जल्दी बको लिख कर जवाब दिया और स्पार्ट चेहरा ऊपर उठाया। आखिर सनी भी तो शरीक ही रहा था ना। बात यह हानि के फरहाद ने अपने मध्यम अंदाज में कहना शुरू किया। तेज़ी से बात काट कर बोली, आप मेरे नहीं नगीन के कज़न हैं, प्लीज़ मुझसे मुखातिब होने की ज़रूरत नहीं है। हानि देखो, नाराज़ तो ना हो। नगीन परेशान हो गई। तभी मैसेज की बेब दोबारा बजी। इसने सर झुकाकर हाथ में पकड़ा मोबाइल देखा। जासूसी का छठा स्टेप। सनी जो कहे इसकी हाँ में हाँ मिलाओ। आगे एक आँख मारता चेहरा था। हानि आपा, दफ़तन सनी ने दरवाजे से झांका। इन तीनों ने पलट कर देखा। आपकी फ़्लाइट कंफर्म हो गई है। खाला का लाहौर से फ़ोन आया था, पूछ रही थी। मैंने बता दिया कि आपने 10 बजे की फ़्लाइट से आना है। सुबह यही बुकिंग कराई थी ना आपने? नगीन ने हैरत से इसे और फरहाद ने ज़रा परेशानी से नगीन को देखा। तुम जा रही हो? हाँ, वापस जा रही हूँ। हाँ, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। इसने जासूसी के छठे स्टेप पर अमल किया।
اور خالہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے منگنی کے فنکشن پر اماں کو انوائٹ کر لیا؟ نہیں، میں ابھی کر دیتی ہوں، وہ سمجھ کر نگین اور فرحاد کی طرف پلٹی جو الجھے سے کھڑے تھے۔ کس کی منگنی؟ میری منگنی۔ بہت اعتماد سے اس نے بتایا، میری پھپھو کے بیٹے عفان سے میری منگنی عید کے تیسرے روز طے ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا۔ اور فرحاد صاحب آپ بھی انوائٹیڈ ہیں، اب اگر آپ لوگ مجھے ایکسکیوز کریں تو میں اپنی پیکنگ کر لوں؟ مگر ہانی پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے، بے رخی سے کہتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دم فرحاد تیزی سے کمرے سے نکل گیا، نگین بھی متاسف سے اس کے پیچھے ہوئی، سنی سب سے آخر میں پلٹا۔ وہ دونوں نکل چکے تو سنی نے باہر کے لیے قدم بڑھائے، وہ الماری چھوڑ کر تیزی سے لپکی اور کان سے پکڑ کر گڑاپ سے سنی کو اندر کیا اور دروازہ بند کیا۔ گھننے میسنے مجھے بیوقوف بنا رہے تھے سب، ایک میں ہی ملی تھی گھٹیا مذاق کرنے کو۔ نازیبا زبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتا ہے، اس نے غصے سے اسے گھورا، پھر پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ یہ میری فلائٹ کس نے بک کرائی ہے؟ میں نے صبح کرا دی تھی تاکہ آپ کی فیس سیونگ ہو سکے۔ اور یہ منگنی کا چکر فرحاد بھائی کو جیلس کرنے کے لیے، کیا مطلب؟ بری طرح چونکی۔ سیدھی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ غالباً چھت پہ بیٹھی آسمان کے نظارے کر رہی تھی جب فرحاد بھائی نے آپ کو دیکھا اور فوراً حسن چچا کو فون گھمایا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ وہ لڑکی پسند کرنے ہی تو ادھر آئے تھے، مگر جب آپ چینی لینے گئیں تو خواہ مخواہ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے رہے۔ نگین آپا نے ان کو جب یہ بتایا کہ آپ ان کے اور ہمارے رشتے کو نہیں جانتی تو انہوں نے چچا کو کہا کہ وہ تھوڑا ٹائم آپ کو تنگ کریں گے، پھر چاند رات پہ بتا دیں گے۔ یہی دھماکہ بھی وہ کرنے لگے تھے، مگر نگین آپا نے سنی سے ایک ناول کے لیے لڑائی کر کے اس بیچارے کو غداری پہ مجبور کر دیا۔ اور وہ زنجیروں والی لڑکی، ارے وہ تو اپنے دوست سے شیئر کر رہے تھے کہ عنقریب آپ کو رشتے کی بیڑیاں پہنا دیں گے، کیونکہ اماں خالہ سے سرسری بات تو کر ہی چکی ہیں، اصل بات تو چچا کے پاکستان آنے پر ہی ہوگی۔ اور تب تک اگر آپ کا ایک عدد منگیتر نکل آئے تو سوچیں فرحاد بھائی کتنا جلیں گے۔ کہیں تم اب بھی مجھے، اس نے مشکوک نگاہوں سے سنی کو گھورا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ سنی ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، تو وہ اسے پسند کرتا تھا، ورنہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا جیسے نگین سے بہت ہی زیادہ دوستی ہو۔ تیار تو ہو کر دونوں ایسے آئے تھے جیسے ولیمہ کے دولہا دلہن ہوں۔ گھننے میسنے یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ پاک حافظ۔